Today we are going to discuss a very beautiful poem written by Najim Ezekiel, that is the Professor. है ना? We are going to discuss this poem line by line. We'll summarize it up clearly. Okay, so नाजिम इजिकल का जब बात करते हैं तो नाजिम इजिकल इज नोन फॉर यूजिंग इंडियन इंग्लिश, है ना. इन ही वाज born in Mumbai. Najim Ezekiel was born in Mumbai. He was also having a connection with the Jewish family also. And so many things we find when we will go for Najim Ezekiel, the writer from Indian literature. Clear? So जब प्रोफेसर का बात करते हैं, है ना, तो इसमें देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि लाए गए हैं ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि उस टाइम पे ऑर्डिनरी जो पीपल थे, है ना, when they try to copy or imitate the accent of British, so how they made themselves, how they presented themselves to the others in a very funny way. So such kind of thing we are going to see here, right? बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, जैसे, है ना, centuries word is applied there, that we often see that in the cricket that word centuries or half century is, है ना, is taken. Or another words like the boys. So for son-in-laws, वो अपने दामाद के लिए, वो अपने बेटे जैसा बेटा के लिए अप्लाई किया क्या, बॉयज. तो छोटा छोटा टूटा फूटा वर्ड्स को अप्लाई किया है, which is we will see that in Indian society such kind of word is applied by those who is very ordinary one, who did not have the understanding of speaking in English, है ना. So the people who did not know how to speak in British accent, so when they used to try or copy, and when they used to imitate that thing, so while imitating they presented themselves they exposed themselves to the other in a very funny way. That is called Babu English. And Najim Ezekiel was the first one who brought Babu English in his work called Party Miss Puspa T.S. Right? So professor poetry है क्या? We are going to see this. तो ये बोलता है, रिमेंबर मी. और बिफोर वी स्टार्ट दिस लेक्चर, सो आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग. नाउ टेल मी व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग. ड्रामेटिक मोनोलॉग है क्या? सपोज a speaker is in the poetry, okay, and he is telling all the thing, and the second one is the silent listener. First one is the speaker, second one is the silent listener. Now we can have our things here in the board also. जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग होते क्या है? ठीक है, तो जैसे एक स्पीकर है, he is saying each and everything, okay, and the second one, that is the silent listener. Silent listener, है ना, साइलेंट लिसनर. एक स्पीकर है, वो हमेशा सारा बात बोलेगा, और ये हमेशा साइलेंट लिसनर है. ये he will not say anything in the poem. वो कुछ भी नहीं बोलेगा. एक कौन है? स्पीकर है. और दूसरा कौन है? एक साइलेंट लिसनर है. पहला स्पीकर सारा कुछ बोल रहा है पोएट्री में, और दूसरा साइलेंट लिसनर है. he will not say anything in the whole poem, but he is equally taking part. लेकिन वो इन्वॉल्व रहेगा. he will present there in the poem. ऐसा फील होगा कि कोई तो सुन रहा है. who is that person? That person is the silent listener, and the speaker is saying all the things in the poem. Who is the speaker here? The professor of geography. And who is the silent listener here? The student, one of his student who used to be the student at the time and he was teaching him. आज वो बड़ा हो चुका है, वो लड़का आज, वो स्टूडेंट आज बड़ा हो चुका है ना. समझ में आ रहा है? तो ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ऑल्सो, है ना, is one of the greatest style in British literature, where the writers like Alfred Tennyson from the Victorian period, okay, Alfred Tennyson, है ना, the writer, the poet like Robert Browning is there, who used to write in dramatic monologue by taking the style of dramatic monologue. Clear? So Professor poem आज हम लोग डील करने वाले हैं. Remember me, I am Professor Seth. What is the name of the professor? Professor Seth. मैं याद हूं तुम्हें? Professor here, Professor Seth is telling to the student, to one of his students, है ना, क्या मैं तुम्हें याद हूं? बताओ. I am Professor Seth. मैं प्रोफेसर सेठ हूं.
वंस आई टाउट यू ज्योग्राफी, जिसने तुम्हें कभी ज्योग्राफी पढ़ाया था, मैं तुम्हें ज्योग्राफी पढ़ाया करता था, क्या मैं तुम्हें याद हूं? आई एम प्रोफेसर सेठ, नाउ आई एम रिटायर्ड, आज मैं रिटायर हो चुका हूं। In India, we see that the age bar is actually taken by the rules of the colleges. Okay, that if a person has almost crossed his 60 years of age, he is in the process of retirement. आज जो आदमी है ना कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी में देखोगे जो 60 साल का, और मेनी अदर इंस्टीट्यूशन आल्सो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेशली अबाउट द इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी, विल सी दैट फ्रॉम द अदर फील्ड आल्सो विल सी दैट इफ अ पर्सन हैज क्रॉस्ड ऑलमोस्ट 60 years of his age, he is going to be retired in a short period of time, definitely 1 or 2 year maybe, तो रिटायर होने का कगार पर है। तो इंडियन इंस्टीट्यूशन ऐसा है कि 60 साल हो गया तो इंडियन इंस्टीट्यूशन के अनुसार है ना, इन कॉलेजेस यूनिवर्सिटी इन सम अनदर सेक्ट्स ऑफ लाइफ आल्सो, तो 60 साल अगर हो गया आप रिटायर हो जाएंगे या फिर हो गए, मान लिया गया, रूल्स यही कहता है, क्या ये आइडेंटिफाई, क्या ये डिफाइन कर सकता है कि 60 साल बाद आप कुछ नहीं कर सकते, 60 साल बाद आप लेजी हो गए हैं? Can this kind of institution which is here in the surrounding can define that you have crossed almost 60 years, okay, and you are now retired, can it be taken that it can define you that you are not going to give your service in the same way that you used to give at your young time? क्या ये डिफाइन कर सकता है? 60 साल गुजर गए, इंस्टीट्यूट मान लिया है ना, रूल्स कहता है कि 60 साल गुजर गए, आप लेजी हो गए होगे, पहले जैसे आप सर्विस नहीं दे पाओगे तो आप रिटायर हो जाओ। लेकिन प्रोफेसर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मैं रिटायर हो गया हूं, आई एम रिटायर्ड, मैं प्रोफेसर सेठ, मैं रिटायर्ड हो गया हूं, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ बीमारी है, मैं हेल्दी नहीं हूं, मैं उसी तरीके से काम नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं। I am still having such kind of a strength that thing in my body, है ना, मैं अभी भी उसी तरह से जवान हूं जिस तरह से मैं सारे काम किया करता था। तो ये इंस्टीट्यूट कैसे डिफाइन कर सकता है कि मैं रिटायर हो गया हूं? बट स्टिल आई एम रिटायर्ड। रिमेंबर मी, आई एम प्रोफेसर सेठ, वंस आई टॉट यू ज्योग्राफी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया करता था? ज्योग्राफी पढ़ाया करता था। नाउ रिमेंबर द सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी, इट कैन बी आस्क्ड in the exam also, right? So you have to take this in your mind. now I am retired, लेकिन मैं अब रिटायर्ड हो चुका हूं, though my health is good, लेकिन मेरा हेल्थ उसी तरह से पहले जैसा ही अभी तक सही है, जिस तरह मैं पहले वर्क किया करता था उसी तरह से मैं अभी भी वर्क कर सकता था आगे कुछ सालों तक। लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूशन ऐसा कर चुका है ना, मुझे रिटायर घोषित कर दिया। माई वाइफ डाइड सम ईयर्स बैक, अब मेरी वाइफ जो है कुछ साल पहले ही गुजर चुकी है। शी पास्ड अवे। बाय गॉड्स ग्रेस ऑल माई चिल्ड्रेन आर वेल सेटल्ड इन लाइफ। और भगवान की दुआओं से, है ना, हमारे जो बच्चे हैं, सारे बच्चे अच्छे हैं, वेल सेटल्ड हैं अपने लाइफ में, सब अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं। नाउ ही विल डिफाइन, है ना, इन द अनदर लाइन यू विल सी दैट ही इज डिफाइनिंग द रैंक ऑफ हिज चिल्ड्रेन। क्या बता रहा है? वन इज सेल्स मैनेजर एंड वन इज बैंक मैनेजर। एक सेल्स मैनेजर है और एक बैंक मैनेजर है। समझ में आ रहा है? एक सेल्स मैनेजर है और एक बैंक मैनेजर है। So we'll talk about the period, है ना, in which this writer Najmi Jekyll was writing during this period I'm talking about. So when he was writing this in this period, so the rank like salesman and a bank manager used to be considered as the prestigious rank, है ना, at that time, and the one who is carrying such a high prestigious rank will be regarded, है ना, the richest one or the very suitable person in the society, ऐसा माना जाता था लोगों का।
समझ में आ रहा है? क्योंकि जिसमें नाजिम जी के लिख रहा था उस दरमियान बैंक मैनेजर को और सेल्स मैनेजर को बहुत ही उच्च उच्च पद पर रखा गया था और बोला जाता था कि ये पद जो कैरी कर रहे हैं बहुत ही अमीर आदमी होंगे और है ना, अमीर हैं तो कार भी रखते होंगे, अच्छे अच्छे महंगे महंगे सामान रखते होंगे। समझ में आ रहा है बात? तो by God's grace, all my children are well settled in life. One is sales manager, one is bank manager. Both have cars. दोनों के पास ही कार्स है। मतलब मेरे पूरे लाइफ में जितने भी थे सब वेल सेटल्ड है ना, मेरे चिल्ड्रन सारे वेल सेटल्ड है। एक सेल्स मैनेजर है, एक बैंक मैनेजर है, दोनों के पास ही गाड़ियां हैं। I am owning the richest society in this generation. He's talking about this. All other also doing well, और सभी लोग अच्छे कर रहे हैं, दो नॉट सो वेल, लेकिन अफसोस दो, समझना, वी हैव टू टेक अ पॉज हियर, है ना। अदर ऑल्सो डूइंग वेल, और बाकी सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छे काम कर रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे लाइफ में, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन फिर भी कुछ बढ़िया नहीं है। एवरी फैमिली मस्ट हैव ब्लैक शीप। What do you mean by this line, every family must have black sheep? हर एक परिवार में एक बच्चा ऐसा निकल ही जाता है ना। सपोज इन अ फैमिली फादर इज हैविंग ऑलमोस्ट 3 or 4 चिल्ड्रन इन द फैमिली, ओके, सो 2 or 3 है ना, हु इज द ओल्डर वन आर गेटिंग जॉब, है ना, दे आर द वेल टैलेंटेड पीपल, दे आर गेटिंग देयर जॉब, बट द यंगर वन यू विल ऑफन सी दैट एक बच्चा, उस परिवार का छोटा बच्चा जो होगा वो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाएगा, वो हमेशा उल्टा पुल्टा काम करेगा, तो एक निकल ही जाते हैं। तो यही मैं यहाँ पर बोल रहा है, नाजिम जेक्कल ही सेइंग हियर, सपोज हियर मींस द प्रोफेसर इज सेइंग हियर कि मेरे सारे कुछ अच्छे चल रहे हैं, सब वेल सेटल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अफसोस कुछ तो है ना। क्या है? क्या है कि हर एक परिवार में एक तो बच्चा ऐसा निकल ही जाता है ना, जो कभी वो सक्सेस होना ही नहीं चाहता। समझ में आ रहा है? एवरी फैमिली मस्ट हैव ब्लैक शीप। हर एक परिवार में एक ऐसा भेड़ की तरह सुस्त, है ना, सुस्त, धीरे धीरे काम करने वाला, जो कि कभी हाइट को नहीं चूमना चाहता, तो एक परिवार में ऐसा निकल ही जाता है। इन फैमिली विल सी दैट even a child is definitely is going to be like this, and we often see in the family. कोई दिक्कत? So every family must have black sheep. हर एक परिवार में एक तो ऐसा होता ही है। तो यही अफसोस है कि उसके साथ भी यही चल रहा है कि कुछ तो यार सब सही है, लेकिन एक ऐसा हो ही जाता, क्या करे। सरला एंड टेरला आर मैरिड। और जो मेरे जो बेटी हैं, द प्रोफेसर इज टॉकिंग अबाउट हिज डॉटर्स सरला एंड तरला। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई ही हैज टेकन सरला एंड तरला। बताओ, सरला और तरला को क्यों लिया है? नाजिम जेक्किल, है ना, he has written this poem, but here the narrator is, the storyteller is the professor here, and he is telling about his daughters सरला एंड तरला। यहां से ही पता चलता है इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोच, है ना। हम कहीं भी ऑर्थोडॉक्स फैमिली या फिर कहीं भी हम कोई भी फैमिली में जाकर देखते हैं, इंडियन सोसाइटी में, टॉकिंग अबाउट इंडियन सोसाइटी इन इंडिया, विल सी दैट सपोज अ फादर इज हैविंग 2 daughters, है ना, सो one of her name definitely would be, okay, Seema, okay, and another name is Rima, सीमा रीमा। अगर किसी के घर में 2 लड़का है ना, तो एक का नाम रहेगा डुग्गू, एक का नाम रहेगा मुग्गू। ये हमारे इंडियन माइंडसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाउ द फादर इन इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम वाज हैविंग देयर माइंडसेट, एंड टुडे वी कैन आल्सो सी सच काइंड ऑफ एग्जांपल इन आवर डेली सराउंडिंग, विल सी दैट, है ना, पिंकी मिंकी, दैट्स व्हाई ही हैज टेकन, है ना, while he was dealing with the poetry, Najim Jekyll
was dealing with the poetry, he thought that we should definitely go for the ordinary things that our Indian people in the society has. Clear? तो मेरी जो बेटी है, here the professor is telling, the speaker is telling, क्या समझते हैं? एवरी फैमिली मस्ट हैव ब्लैक शिप, सरला एंड तरला आर मैरिड, और मेरे जो बेटियां हैं वो भी, उन लोगों का भी शादी हो चुके हैं. देयर हस्बैंड्स आर वेरी नाइस बॉयज, देयर हस्बैंड्स आर वेरी नाइस बॉयज. और उनके जो हस्बैंड्स हैं, मींस ही इज टॉकिंग अबाउट सन इन लॉ, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ही इज टेकिंग एंड ही इज टेलिंग दैट, है ना, देयर हस्बैंड्स आर वेरी नाइस बॉयज. उन लोगों के जो हस्बैंड है बहुत ही अच्छे लड़के हैं. What is this? What is these lines? क्या ये लाइन क्या बताना चाह रहा है? बिल्कुल सिंपल. एक आदमी जिसको इंग्लिश नहीं आता है, वो जब भी अपने बारे में बताएगा तो बिल्कुल इसी तरीके से बताएगा जैसे ये बोल रहा है. रियलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल रियलिटी, है ना. सेकेंड, जो प्योरिटी है, प्योरिटी, जो जैसा होना चाहिए हूबहू वैसा दिखाया है. नाजिम एजेकियल इज सच काइंड ऑफ पर्सन. समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? सरला एंड तरला मैरिड, देयर हस्बैंड्स आर वेरी नाइस बॉयज. यू वॉन्ट बिलीव बट आई हैव 11 ग्रैंड चिल्ड्रेन. तुम विश्वास नहीं करोगे. किसको बोल रहा है? The silent listener that I have already talked about, है ना, the dramatic monologue here, the style taken by Nazim Ezekiel in this poem. समझ में आ रहा है? तो ये क्या बोल रहा है? You won't believe, but I have 11 grandchildren. तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन मेरे 11 grandchildren हैं. 11 grandchildren. Grandchildren मतलब पोते लोग. समझ में आ रहा है? हाउ मेनी इशूज यू हैव? 3. अब बोला तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? कितने तुम्हारे कितने प्रॉब्लम थे? 3. क्योंकि why he is telling, है ना, to the listener that तुम्हें तो सिर्फ 3 ही प्रॉब्लम होंगे. why is telling? क्यों बोल रहा है तुम्हें तो सिर्फ 3 ही प्रॉब्लम होंगे? he is telling to a student, तुम्हें तो तुम्हारे लाइफ में भी कोई इश्यूज होंगे. 3 इशू हैं क्या? सिर्फ 3 ही इशू हैं. क्यों बोल रहा है? नाजिम एजेकियल कितने बेहतर तरीके से, है ना, इंडियन इंग्लिश को पोर्ट्रे किया है. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल इन इंडियन इंग्लिश. You will see when you will start reading this poetry line by line, you will see that the poetry is actually rustic, used here the very ordinary language, so that the large amount of crowd, large amount of people would be able to read this. So that's why he has taken. Indian English is all about this. समझ में आ रहा है? तो बोल रहा है क्या? यू वॉन्ट बिलीव बट आई हैव 11 ग्रैंड चिल्ड्रन. तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन मेरे 11 ग्रैंड चिल्ड्रन हो चुके हैं. नाउ आई एम रिटायर्ड. हाउ मेनी इश्यूज यू हैव? और तुम्हारे कितने इश्यूज हैं? 3. क्योंकि जब भी स्टूडेंट का बात करते हो ना, वो जब भी बात करेगा तो 3, 5, 10 वो पर्टिकुलर नंबर का ही सेलेक्टेड नंबर्स का ही एग्जांपल लेता है. दैट द राइटर्स लाइक W.B. Yeats used to take the certain examples in almost all his work. समझ में आ रहा है? तुम्हारे तो 3 ही प्रॉब्लम होंगे. दैट इज गुड, अच्छी बात है. These are, है ना, these are days of family planning. और ये जो डेज है, ये फैमिली प्लानिंग का डेज है. आई एम नॉट अगेंस्ट, मैं उसके अगेंस्ट में नहीं जा रहा. समझना बात को. ये क्या बोला? यू वॉन्ट बिलीव बट आई हैव 11 ग्रैंड चिल्ड्रन. क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर? तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मेरे पास कितने बच्चे हैं? 11 ग्रैंड चिल्ड्रन है मेरे. यहां पर क्या बोल रहा है? 11 ग्रैंड चिल्ड्रन होना कोई अच्छा बात नहीं है, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं होगा. ठीक है? एंड अगेन इन द अनदर लाइन यू विल सी दैट ही इज सजेस्टिंग द फैमिली प्लानिंग.
कि that is good, है ना? These are days of family planning.